کی نظر میں کہاں تک چلیں گے؟ عمران خان صاحب سے جو چیزیں اس وقت ملاقات نہیں ہوئی جا رہی، کئی دنوں سے کئی مہینوں سے ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کے کیا رائے پلیز بتائیے گا؟ آغا شیخ صاحب ڈیجیٹل میڈیا، آغا شیخ صاحب ڈیجیٹل میڈیا، آغا شیخ صاحب جی جی آغا صاحب آپ بتائیے گا سر، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مذاکرات کی کوئی بات شات ہوئی کہیں، کوئی چلی کوئی کہیں؟ سے کہہ دیا ہوگا مذاکرات کس چیز کے بھائی؟ مذاکرات نہیں کریں گے کس چیز کے؟ 8 فروری کو جی جی 8 فروری کو زر اور زور کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانوں کے رائے کو بدل دیا گیا۔ یہ مجھے پکڑاتے ہیں آپ سے 25 کروڑ انسانوں کے رائے کو بدل دیا گیا۔ جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرائے ہوا ڈکلیئر کیا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو پاکستان کا حکمران بنا دیا۔ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی نے میرے گھر کا سامان سب اٹھا کے لے گیا ہے، وہ یہ ہمارے کچھ مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے کہ بھائی میرا سامان واپس کر دو۔ بالکل پرواہ نہیں، تھوڑی بہت اگر اس میں کمی ہو ہم معاف کر دیں گے، ہمارا سامان معاف کر وہ کر دو۔ اگر وہ اس میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ تمام پارٹیوں نے پارلیمنٹ کا ووٹ جو کہ الیجیٹمیٹ ہے، صحیح پارلیمنٹ نہیں ہے لیکن لوگ نمائندہ سمجھتے ہیں، اس نے وہ خطرناک امینڈمنٹس کی اس آئین میں جس کو متفقہ طور پہ لوگوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، اب ان پارٹی کے بھی بچاؤ اسی میں ہے، انہوں نے جو غلطی کی وہ تو کر دی۔ اب سیاسی پارٹیوں نے مل بیٹھ کے کم سے کم نفات پہ اتحاد کرنا ہوگا، اس پہ مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات یہ ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا، یا ایک آئین ہوگا جس پہ تمام لوگ متفق ہوں گے۔ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہی داخلی اور خارجی پالیسیاں بنائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے، کبھی وزیر اطلاعات، کبھی وزیر فلانا، ایک جنگی ماحول اپنے ہمسایوں کے خلاف۔ ہم تو 3-4 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے افغانستان، ایران، پاکستان، ارد گرد کی چین کے رہنماؤں کا امتحان ہے۔ یہ خطہ ایک بڑی جنگ کے میدان بننے کی طرف جا رہا ہے۔ پرسوں ایک منتخب ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو اپنی بیڈ روم سے بیوی سمیت اٹھا لیا گیا۔ یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں ایسے گزارا کریں گے؟ کیا اس جنگی ماحول میں ایک ایسی پارلیمنٹ جو نمائندہ نہیں ہے وہ یہ مقابلہ کر سکی ہے؟ نہیں کر سکی۔ ابھی ہم نے بس توبہ کرنی ہوگی اور ان نکات پہ مشورہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مذاکرات ہوں گے، مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ یہ پارلیمنٹ غائب ہو جائے، چھٹی کر دے۔ ایک لاؤڈلی اسپیکنگ میاں نواز شریف، فضل الرحمان، ANP کے اکابرین، پیپل پارٹی کے اکابرین، جماعت اسلامی کے اکابرین، جو بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان پہ مشتمل ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے۔ وہ 4 مہینے میں 5 مہینے میں ایک الیکشن کمیشن، اچھا الیکشن کمیشن، ایک نئے انتخابات، بس اس کو ہم مان لیں گے، انٹریم گورنمنٹ بن جائے گی، نئے انتخابات کی ہم تیاری کر لیں گے۔ 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جس دن ہمارے سارے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زور ہوا ہے، اس دن ہم نے تمام ملک میں بلکہ برطانوی دنیا میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تمام ورکروں کو جس بھی پارٹی کے ہیں، بالخصوص تحریک انصاف کے کارکن، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، دیوسمین خان کے ہوں، دیر کے ہوں، سوات کے ہوں، چترال کے ہوں، کراچی کے ہوں، کوئٹہ کے ہوں، جہاں جہاں کی بھی ہو، دوسری ہماری پارٹی، ہم سب اپنے اپنے علاقوں میں دکانداروں کے پاس جائیں کہ مہربانی کریں، اس ظلم کے خلاف آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، نہ کسی کو پتھر مارو، نہ کسی کو گالی دو، مہربانی کریں 8 فروری کو دکان بند رکھیں۔ رکشے والوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ٹیکسی والوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے،
ट्रक वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बसों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पुरअमन एहतजाज जहाँ जहाँ मुमकिन हो, काली झंडियों के साथ अमन मार्च हो, जहाँ नहीं हो सकता परवानी ना हो, जहाँ हो सकता है हमने लंबे लंबे मार्च करने हैं। बाजोड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर जगह जहाँ मुमकिन है हमने मार्च करने हैं। उसमें हमारा ये होगा कि भाई जमहूरी पाकिस्तान की वापसी, जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील, जमहूरी पाकिस्तान की तामीर नौ, इसमें मुज़ाकरात हमसे कोई करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इमरान खान की बहनें यहाँ आ जाती हैं, बैठ जाती हैं, क्या 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 आसमान गिरता है। ये दिन मंगल का दिन अदालत ने कहा था कि ये उनके मुलाकातों का दिन है। आ जाते हैं या बैठ जाते हैं, फिर बिस्मिल्लाह वाटर कैनन से जहरीला पानी फेंक के, क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जबर जुल्म से तो ना हुकूमतें चलती है और ना हमको मानने के लिए तैयार हैं। हमने इस जबर के खिलाफ तारीख का ऐलान करना है, हमने कर दिया है। उसके ऊपर लिखा हुआ है एहतजाज एहतजाज एहतजाज। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अखबारी नुमाइंदगान, जज साहिबान, जो भी, हमने सब लोगों से मिलना है। आपने भी मेहरबानी करनी है, मसूरात ने भी मेहरबानी करनी है, बच्चों ने भी मेहरबानी करनी है। हमने 8 अक्टूबर को तमाम मुल्क में 8 फरवरी हमने ये दिन बड़े जुर्रत से मनाना है और लाखों की तादाद में सड़कों पे निकलना है। जहाँ हम निकल सकते हैं, जहाँ नहीं निकल सकते हैं वो गोलियां मारते हैं, बिस्मिल्लाह। हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, किसी को माँ बहन की गाली नहीं देंगे। और अगर कोई मुफ्त में हमें तंग करना चाहता है और इस मुल्क को एक की तरफ दिखाना चाहता है, फिर वो जाने उनकी बंगा से आ जाए। हमने ये काम करना है, इसीलिए हम आए हैं इज़हार यकजहती के लिए। राजा साहब आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, इन बहनों से खुला कर लेना सर, नहीं खुला इज़हार यकजहती के लिए हम आए हैं। हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमें किसी ने बैठने दिया। हमें बैठने पे क्यों, क्या इतराज़? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, दुनिया के बदतरीन मुजरिमों की मुलाकात पाबंदी नहीं होती। बुद्धिनी स्मगलर्स, ड्रग स्मगलर्स, कातिल, डाकू, जिन्होंने करोड़ों अरबों के डॉलर के बैंक लूटे हों, उनकी उस पर भी पाबंदी नहीं है। या फिर पाबंदी क्यों लगाई? बुरी बात है गल। हम मिलना चाहते हैं, हम ये हक है इमरान खान की फैमिली का, ये हक है। एक वज़ीर आला जो उसकी पार्टी का है, वो एक फ़र्द नहीं है, वो एक पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करता है। वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, उससे हिदायत लेना चाहता है, उससे डिस्कस करना चाहते हैं। आप नहीं छोड़ते, फिर उसके खिलाफ आप बोलने लगते हैं ये बागी है और पता नहीं अफगानिस्तान क्या है, ईरान क्या क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह करें। हमसायों के साथ ये क्या हो रहा है? खुदा न खास्ता ईरान पे हमला होता है, हम कहाँ खड़े होंगे? ईरान पे हमला होता है, जिस तरह उसको ईरान पे हमला होता है, हम कहाँ खड़े होंगे? हम अमेरिका के साथ होंगे, उन कुव्वतों के साथ होंगे जो ईरान को निकालना चाहते हैं। तो खानजंगी शुरू हो जाएगी, सारे मुल्कों में खानजंगी शुरू हो जाएगी। हमें अपने हमसायों के साथ बहुत एहतियात से रहना होगा, एहतियात से आगे बढ़ना होगा। मुस्तकिल लड़ाइयाँ सियासत में नहीं होती। यूरोप 2 बदतरीन जंगें कर चुका, एक दूसरे के करोड़ों लोग मारे। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, आज वो इत्यादी हैं। रूस और जर्मन एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके दरमियान पासपोर्ट नहीं है, उनके दरमियान वो नहीं है। हम क्यों ऐसे पागल के बच्चे बन गए? हम क्यों अपने हमसायों के साथ जी और जीने दो की बुनियाद हम वो नहीं कर सकते, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारा ये है, अपना काम करें, पर्दे के पीछे से हुक्मरानों को वो कुछ बताया करें ये क्या हो रहा है। इसलिए हम आए हैं। 8 फरवरी को हम अपील करते हैं, हर पाकिस्तानी ने निकलना होगा। हमने दुकानों के तकसीम करने होंगे, दुकानें बंद होंगी, ट्रैफिक बंद होगा। तूल अर्ज़ में सारे मुल्क में और बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ये दिन एक जमहूर की आज़ादी के लिए, बुनियादी हुकूक़ की वापसी के लिए, वापस आइन पे आने के लिए,
पार्लियामेंट की इख्तियारात को वापस लाने और वापस पाकिस्तान को एक आईनी मुमलिकत बनाने के लिए हमने जुर्जत करनी होगी। तो आपका भला करे। महमूद साहब ये बताइएगा कि आपने 8 तारीख का बताया कि 8 तारीख को निकलेंगे, क्या कोई ये भी डिसाइड हुआ कि पार्टी के कौन के कायदीन कहाँ कहाँ किस शहर में उसको लीड करेंगे? क्या 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 आपने ये बताया कि 8 तारीख को तमाम लोग निकलेंगे, कोई पार्टी की तरफ से ये भी डिसाइड हुआ कि कौन कौन लोग कहाँ पर लीड करेंगे? हम किसी को ये बताना नहीं चाहते कौन कहाँ लीड करेगा। हमने जदोजहद करनी है, अमन जदोजहद बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, उन हज़ारों कैदियों के लिए। क्या हुआ डिशोक में, क्या हो रहा था? लोग अपना हक के बेसिक ह्यूमन राइट्स इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी गोलियां मारी, अपने सारी सड़कें लहूलुहान कर, छोटे छोटे बच्चों को अपने हुकूमत खानों में दुनिया जहाँ की बेइज्जतियाँ, बासमत मस्तूरात को अपने थानों में जेलों में बेइज्जत किया। आप किस खुशी में? पागल है आप? क्या दिमाग खराब हो गया आपका? अगर कोई मुजरिम है, फलाना है, कवानीन है, दाखिला या जेल भेज दो। ये सड़कों पे बात आप करने नहीं देते, पार्लियामेंट में बात आप करने नहीं देते, शर्त ये लगाए फलाना काम कर दो वरना मुलाकात। ये नहीं होती मुलाकात। बुनियादी हमारा हक है, उसकी फैमिली का हक है, उसके बच्चों का हक है, उसकी बीवी का हक है, उसकी बहनों का हक है, उसकी पार्टी पाकिस्तान का। आपकी गलती से या अल्लाह पाक की मेहरबानी से इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, वो जेल में है, उससे आप लोगों को मिलने इंतखाब है। इमरान खान ये है, इमरान खान ये, इमरान खान वो। अगर इमरान खान बुरा था, आपने उसे वज़ीर आज़म क्यों बनाया? उसे वज़ीर आज़म क्यों बनाया? पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या? जो भी हो कभी आपकी उसके साथ नहीं बनी, हुक्मरानों की आपके साथ नहीं बनी। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी भी आपसे नहीं बनती, आपकी भी उनसे नहीं बनती थी। आज भी ऐसे ही है। ऐसे कर देना। हम इत्यादि थे, मैनेज करना सीखो। हम लंदन में एक पीडीएम बनाने में हम सारे शरीक थे। इमरान भाई भी हमारे साथ थे, रहमान भी थे, 36 पार्टियाँ हमारे साथ थे। अब किस्मती से ना मैं किसी करने नहीं था, दरमियान में NRO कर दिया। 9,000 क्रिमिनल केसेस, 9,000 क्रिमिनल केसेस जो 6वीं सदी ईस्वी के बादशाह भी विड्रॉ नहीं कर सकते थे, वो विड्रॉ हुए। उससे हमारी वो हुई, हमने इलेक्शन का बायकॉट किया। इमरान खान, काजी हुसैन अहमद, हमारी पार्टी, बलूचिस्तान की पार्टियाँ, हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। हम इकट्ठे रहे, हमने सारे मुल्क में कैंपेन चलाई। हम उसके साथ होता है इख्तिलाफात, जब पार्लियामेंट की बात आती है तो आपकी अपनी राय होती, मेरे अपनी राय होती। अच्छा साहब ये भी सियासी नजरें सर आप पर है, आप पर और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पर, कि आप क्योंकि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कोई रास्ता निकालेंगे, सियासी मुलाकात करेंगे। यही कहती बिस्मिल्लाह। अगर गलती इमरान खान में है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, हम जाके उसकी गलतियाँ उससे पूछ लेंगे, उसको निकाल लेंगे। अगर गलतियाँ आप में हैं, आपने एक मुंतखब पार्लियामेंट को कब्जा किया है, आपने जीते हुए लोगों को जेलों में डाल दिया है, आपने जीते हुए लोगों को मारा है, पीटा है, गोलियां मारी है, तो कसूर आप में है, कसूर आप में है। क्या आप अपने किए पे पशेमान हैं? क्या आप अपने किए पे उसको बुरा समझते हैं? इससे बात हो सकती है, इससे बात नहीं हो सकती कि जी बिस्मिल्लाह आया हुकूमत में शामिल हो। अच्छा दूसरी मजबूर करेंगे, खुदा ना खास। अच्छा साहब, आप दूसरी सियासी पार्टियां जैसे जमात इस्लामी, सर उनको भी 8 तारीख को दावत देंगे सर? हर उस पाकिस्तानी को जो यहाँ जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील चाहता है, जो यहाँ पार्लियामेंट की ताकत पे यकीन रखता है, जो यहाँ एक आईनी पाकिस्तान चाहता है, उसके साथ हम मुज़ाकरात नहीं बल्कि उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। आए बिस्मिल्लाह करें, आए गलतियाँ हुई हैं, आए इस गलती को ठीक करें। ये दलील नहीं है कि आपने चूंकि ये किया था मैं ये करूँ वो भी करूँ, नहीं। मैंने उसे कहा था एक शरीफ आदमी से, मैंने कहा फलानी ने आपके पीछे 3 किलो हीरोइन रख दी, तो आप मेरे पीछे 10 किलो रखेंगे क्या? चिट फटैट ये नहीं होगा। मेरी गलती आपकी गलती की बुनियाद नहीं बन सकती। ये राना सनाउल्लाह से कहा था। राना सनाउल्लाह मेरे दोस्त है, शरीफ आदमी है। और उन्होंने ही कहा कि 5 लोग अगर बैठ जाए, उन्होंने इमरान खान का भी नाम लिया कि उनके भी साथ बैठ के बात है। उसका उन्होंने नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम लिया। 5वां इन्होंने क्रिएट किया,
पांचवा इन्होंने क्रिएट किया। इमरान की पार्टी का वोट उसके पास नहीं गया, बाकी तीनों ने वोट दे के एक पांचवा आदमी क्रिएट कर दिया। ये गलत क्रिएशन की है, गलत क्रिएशन की है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वहीं पर होंगे, उन्हीं से उसके अलावा नहीं, सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। खान साहब ये कहते हैं। कम से कम वो मेरा नहीं आज बोल रहा था, आज वो शरीफ आदमी बोल आज वो शरीफ नहीं, एक सेकंड, ये आपको किसने कहा है? इमरान खान हमारे ने आपको सामने कहा था? जी बिल्कुल क्या हरियाणा, कहा था? आप जितने भी आज जर्नलिस्ट ISP मैं बताता हूँ क्या कहा। मैं उनका जुमला कोट करता हूँ। खान साहब ने कहा था कि जिनके पास ताकत है, ताकत हमारे पास, ताकत हमारे पास, ताकत आवाम के पास, ताकत हमारे पास है। अगर बात करना चाहता है, अचकज़ई साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, एजिटेशन करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं बिलाखिर नतीजा जो है एक बार फिर मुज़ाकरात पे ही आना है, तो क्यों ना अब मुज़ाकरात किए जाएं? ये क्या मुज़ाकरात पे ही अगर बात ख़त्म होनी है तो एजिटेशन का क्या होगी? फ़ायदा? मुज़ाकरात उन्होंने तो अब से कह दिया। अगर आप कहते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ये हमें कबूल नहीं है। गली गली में बदमाशी है, बदइतिमादी है, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है, हमारे सरमाएदार भाग रहे हैं, स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, किसी की न इज़्ज़त महफूज है न ये हमारा क्रिएट किया हुआ, हमने ये किया, हमने तौबा करनी होगी सब ने। चलो थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। मुलाकात होते तो आपकी तरफ से क्या मुतालबात पेश किए? वो बता दिए आप पहले, बता दिए।